Welcome back, guys. Welcome back you to the channel The Voice Box. Today we are going to finish the chapter 1 of statistics with the second part. Okay. So in last video we have observed what is the meaning of statistics in the plural sense. Now in this video we will be looking towards the meaning of statistics in the singular sense. Okay, let's start. So in the singular sense, statistics means that the science of statistics or statistical methods. It refers to the techniques or methods relating to the collection, classification, presentation, analysis, and interpretation of quantitative data. So, what we have read in our that plural sense, in plural sense we have read that the number or the numerical datas, these are the plural sense of statistics. ठीक है, तो जो statistics होता है वो plural sense में कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है? इट रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड न्यूमेरिकल डाटास, और इन सिंगुलर सेंस में वही डाटा कलेक्ट करने का जो मेथड है या टेक्निक है, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, कलेक्शन हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस में क्या हो गया, जो उसके कलेक्ट करने का तरीका है, जो वे है, जो या जो टेक्निक है, वही होता है आपका मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ओके, नाउ स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। जो स्टैटिस्टिकल स्टडी या स्टैटिस्टिकल कलेक्शन होती है, या जिस मेथड से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके भी कुछ वेज है या कुछ स्टेजेस है। आइए एक एक करके देखते हैं। स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन implies the knowledge of various stages of statistical study. Let us see what are those. Firstly is your collection of statistical data. Okay, then second is your organization of data. Then third is your presentation of data. Fourth is your analysis of data. Fifth is your conclusion, interpretation of data to find a conclusion. ठीक है, तो पहले मेथड में क्या करना है कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको सबसे पहले कलेक्ट करना है। ठीक है, उसका तो उसको पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज करना है। थर्डली फिर उसको एक प्रॉपरली टेबल में या चार्ट में हमको प्रेजेंट करना है। फोर्थ में उस डाटा को हम लोग को एनालाइज करना है कि क्या हमने किस बारे में, कैसे डाटा क्या क्या कलेक्ट किया है। और फिफ्थ इज योर इंटरप्रिटेशन करना है कि हमने ये जो किया है वो क्या क्या चीज़ पे है। नाउ लेट अस कम टू स्टैटिस्टिकल टूल, जिस टूल के माध्यम से हमने ये सब किया है। नाउ दिस रेफर्स टू द मेथड्स और टेक्निक्स यूज्ड फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज वेल एज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मैंने पहले ही बोला, तो स्टैटिस्टिकल टूल हम उस मेथड को कहते हैं या उस टेक्निक को कहते हैं जिसके माध्यम से हम कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, या फिर कोई भी डाटा को एनालाइज करते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं ना। इसके भी स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस मैंने पहले ही बताया था। ये देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब चलिए इसके स्टैटिस्टिकल टूल को देखते हैं। तो स्टेज 1 दैट इज योर कलेक्शन ऑफ डाटा। दिस इज योर सेंसस और सैंपल टेक्निक्स। ठीक है, सेकेंड इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, दैट इज एन अरे ऑफ डाटा एंड टैली बार। टैली बार आप लोग समझते हो? यस, ओके। देन स्टेज 3 presentation of data in tables, graphs and diagrams, like you have drawn particularly a schedule. Now that schedule, many people need the graph to understood, many people need the schedule to understood, many people need diagrams to understood. ठीक है, then stage 4 is your analysis of data. How would we able to analyze? Like we are finding the percentage, the average, the correlation and the regression coefficients. Correlation and regression coefficients, this is your upcoming syllabuses, but till now this much is sufficient. Then stage 5 is your interpretation of data. What are those? Like magnitude of percentage, average and the degree of relationship between the different economic variables. Okay, now let's come to the scope of statistics. So there are 3 scope of statistics. Firstly, nature of statistics. Thirdly, subject matter of statistics. And thirdly, limitation of statistics. Okay, let us understood one by one. Firstly,
Nature of statistics. So first point is your statistics is both an art and a science. How statistics is both art and science? Because as science consists particular formulas, similarly statistics also constitute not few sufficient formulas. Now that doesn't makes it a science, because we have read in the first part ki why what is the need of statistics in economics. So economics is also a branch of science, so this is also, and this is a art because we are collecting the data, presenting the data, that's why. Okay, now as a science, statistics studies numerical data scientifically और systematically. ठीक है, एक साइंस होने के नाते स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा को सिस्टमैटिकली समझती है. ठीक है, और एक आर्ट होने के लिए statistics relates to the quantitative data to real life problems using statistical data for analysis and understanding much better than otherwise. चलो अभी एक एग्जांपल से समझते हैं. Like the problem of unemployment in India is more meaningful analyzed when the size of unemployment is supported by the quantitative data. मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो कितना है या उसका साइज क्या है, यदि हम वो बता दें तो वो उस क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को एक क्वांटिटेटिव वे में और बढ़ावा देता है. तो ही कह रहा है कि एज अ साइंस इट इज studying the numerical data systematically, and as an art it relates to the quantitative data to real life problems. ठीक है, कैसे समझे हम लोग कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन उसी के साथ साथ यदि हम ये भी बता दें कि कितने अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर क्या परसेंट है, क्या साइज है, तो वो और सपोर्टिंग हो जाता है. ठीक है, then next comes your subject matter of statistics. Now it consists of two components. What are those? Descriptive and inferential. ठीक है, क्या क्या है, डिस्क्रिप्टिव है और इन्फेरेंशियल है. नाउ लेट्स कम, वी अंडरस्टूड वन बाय वन. फर्स्टली इज योर descriptive one. So descriptive statistics is described as methods used for the collection, presentation and analysis of data, including techniques like measurement of depression, for example your standard deviation or mean deviation, and central tendencies like mean, mode, median and correlation. डिस्क्रिप्टिव में यही बताना चाह रहा है कि जो मैथमेटिकल्स या फिर जो मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्शन के एनालिसिस के, उसी को जैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, यही सब होता है आपका डिस्क्रिप्टिव वन. ठीक है, और इन्फेरेंशियल ये होता है कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द मेथड्स दैट ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन और यूनिवर्स बेस्ड ऑन गिवन डाटा. मतलब डिस्क्रिप्टिव से जो मैथमेटिकल मेथड्स आते हैं वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव मैनर, और जिससे हम कंक्लूजन निकालते हैं वो होता है आपका इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ओके, नाउ let's come to the limitation of statistics. Now study, first point is the study of numerical facts, obviously study of aggregates only, ये भी है. prone to misuse, एकदम सही बात, statistics का misuse हो सकता है. कैन बी यूज ओनली बाई एक्सपर्ट्स. हाँ, अभी आप भारत का किसी भी चीज़ का सेंसस निकाल के दे दो, डेथ रेट, बर्थ रेट, किसी भी आदमी को दे दो तो वो स्टडी नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज़ अ पर्टिकुलर एक्सपर्ट ऑन दैट. ठीक है, देन होमोजेनिटी ऑफ डाटा इज एसेंशियल और एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट. जो होमोजीनियस मतलब ये समझते हो ना, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे ना, क्या कहते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, वैसे ही. तो होमोजेनिटी का मतलब डाटा में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और डाटा ऐसे नहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आधा है वहाँ पे आधा, नहीं, होमोजेनिटी होनी चाहिए उसमें, और उसमें मिलावट कम होनी चाहिए, वही. उसके बाद विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग, और बिना रेफरेंस के रिजल्ट गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. दिस इज योर सिक्स्थ पॉइंट. देन next is your importance of statistics in economics. Guys, I want, if you found this all notes useful for your
studying purpose, you should write it. You should write and store this for your short notes or your fair notes. This notes will be very very helpful for you. Okay. Now, importance of statistics in economics. Firstly, your quantitative expression of economic problems. Okay, consider an economic problem, be it the problem of unemployment or the problem of price rise or the problem of shrinking exports. The first task of economics is to understand its magnitude and its quantitative expression. मतलब यही कहना चाह रहा है कि जब भी मतलब देश में मान लो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है या प्राइस राइज हो रही है या हमारी एक्सपोर्ट श्रिंक हो रही है, एक्सपोर्ट श्रिंक होना मतलब हमारी जो एक्सपोर्टिंग होती थी वो अभी कम हो रही है, तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टास्क क्या है कि पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालना और क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन निकालना, मतलब कितना हो रहा है, कितना परसेंटेज में अफेक्ट हो रहा है और कितना मतलब प्राइस राइज भी हो रहा है तो कितना परसेंट से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हो रहा है. So this comes all under first point, that is quantitative explanation of economic problems. Then working out of cause and effect relationship, like working out of cause and effect relationship is the science of statistics. ठीक है, ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स की साइंस है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस. देन इट कंसिस्ट ऑफ साइंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज मतलब संभावना और इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब जैसे प्राइस का हमने देखा था कि प्राइस यदि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बढ़ती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घटती है, और यदि उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस घट रही है तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी. ओके, कम टू द थर्ड पॉइंट, economic forecasting. Now, statistics also helps to predict the future behaviors or phenomena such as market situations which are based upon the past and the present data. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब आप सिंपली ऐसे समझो कि जो अभी पर्टिकुलर मार्केट का सिचुएशन है या स्टॉक मार्केट का सिचुएशन है, तो अभी का जो हमारे पास डाटा है या उसके पहले का जो डाटा है, हम ये दोनों डाटा से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में इसकी प्राइस क्या हो सकती है. जैसे गोल्ड की प्राइस अभी काफ़ी महंगी है, तो अभी की अवस्था और कुछ सालों पहले की अवस्था से हम यदि कंपेयर करके देखें तो हम ये कहेंगे कि भविष्य में गोल्ड की प्राइस और भी बढ़ेगी, और गोल्ड बढ़ेगी तो साथ साथ और भी जो कॉस्टली मटेरियल्स है या जो मेटल्स अवेलेबल है जिसकी ज्वेलरीज बनती है उसकी भी कॉस्ट अपने आप बढ़ेगी. तो ये जो हमने प्रेडिक्शन किया, किससे किया, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग को यूज़ करके. तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग यही होता है कि जब हमारे पास जो मौजूद डाटा है, प्रेजेंट डाटा या पास्ट डाटा से हम मार्केट का बिहेवियर या किसी भी चीज़ का पर्टिकुलरली इकोनॉमिक सिचुएशन को प्रेडिक्ट करते हैं, वही होता है आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. द नेक्स्ट कम्स योर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. कैसे? With the help of statistics, it is quite easy to make the policies regarding export, import, wages, productions, etc. Some laws such as Mathlus theory of population and Engel's theory of family expenditure are based on statistics. यही कहना चाह रहा है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स के मदद से पॉलिसीज़ बना सकते हैं. कैसे पॉलिसीज़? जैसे मान लो कि अभी हमारे साथ जो अमेरिका का जो टैरिफ वॉर अभी चल रहा है, उसी के साथ साथ यदि हम उसके ऊपर डिपेंडेंसी घटा दें, घटा तो रही है, मतलब हमारे साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है हम उनमें अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा दें, तो वही जो हमने पॉलिसी अपना चेंज किया, तो ये पॉलिसीज़ हमने किसके बेसिस पे चेंज किया है, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे. क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो रहा है, हमको अधिक टैरिफ देना पड़ रहा है, तो भाई जहाँ पे हमको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा तो हम वहाँ पे तो जाएंगे नहीं. सिमिलर बात है. और इसी के साथ मैथलस ने भी अपना थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में दिया था कि किस तरह से एक पॉपुलेशन को, एक पर्टिकुलर एरिया के लिविंग बीइंग को, ह्यूमंस को किस तरह से अपनी एवरेज इनकम के बेसिस पे अपना एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए. और एंजल्स का लॉ भी एक फैमिली एक्सपेंडिचर का वही बताता है.
जो मैथलस ने पूरे एक एरिया के पॉपुलेशन के बारे में बताया था, वो एंजल्स एक इंडिविजुअल में बताता है कि एक फैमिली का जो एवरेज इनकम होता है उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि उस फैमिली का पर्टिकुलर कितना इनकम होना चाहिए, आई मीन कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कितना सेविंग्स होना चाहिए फॉर द फ्यूचर पर्पस। ओके, कम टू द लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ आई वांट टू रिलेट यू विथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आल्सो। तो हमने क्या देखा था कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसका जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अब उसी कमोडिटी के प्राइस के इक्वल होता है, तभी होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में है, जब जितना अमाउंट वो पे कर रहा है उसी अमाउंट का सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, तभी वो इक्विलिब्रियम में है। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में हम कैसे आ सकते हैं? तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस of the producer and the consumer where the producer finds that his profits are maximum and the consumer finds his satisfaction is maximum। मतलब ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? ये जो दुकानदार है, सॉरी दुकानदार बोल रहा हूँ, जो प्रोड्यूसर है उसको क्या दिख रहा है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, और जो कंज्यूमर है उसको क्या दिख रहा है, हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव होती है पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो यदि प्राइस के बराबर है तो वही आपका इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक, यही भी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम यही कहता है कि जो प्रोड्यूसर है यदि उसको अपनी प्रॉफिट ज़्यादा दिख रही है और कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दिख रही है, तो वो हो गई आपकी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। बाय दिस we end up our first chapter from the second book, that is Statistics for Economics. Hereby I thank you all for watching this video. Stay tuned for more videos. Thanks for watching.